स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस बात को सियासी लेवल पे नहीं, इंसानी तौर पर एक बार सोच के देखना जो मैं कहने जा रहा हूं। जम्मू कश्मीर में जिसने भी इंडो पाक टेंशन में शहादत दी है, उन परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। हमें मान होना चाहिए ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है। कोई तो ऐसा है जो कौम और सरकार के बीच पुल का काम करता है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन यह आपको मानना पड़ेगा। वो पुल का काम कर रहे हैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी। ये बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा कभी ऐसे वीडियोस मेरे हुए हैं। यहां शुरुआती दौर में मैंने कुछ ऐसे वीडियो भी बनाए हैं जहां सवाल भी पूछे हैं अजीत सिंह से, लेकिन आज मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इनके बहुत ज़्यादा एफर्ट हैं कौम और सरकार के बीच पुल का काम जो करने किया है इन्होंने। अजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम पिछले 4-5 दिन से आपको ट्राई कर रहे थे, आपने लगातार कह रहे थे कि मैं ट्रैवल पे हूँ, मैं ट्रैवल पे हूँ। वक्त लगा आपको पहुँच जाने में, थोड़ा वक्त लग गया। सवाल कड़वा है, लेकिन क्या करूं, पूछने पड़ते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अजीत सिंह जी, जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब ये शहादतें हुई पुंछ में, तो सबसे पहले अजीत सिंह पहुंचेंगे, लेकिन वक्त लगा उसमें। क्यों? पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। रविंਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਤਰੀਕ ਮੈਂ श्रीनगर ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਐਲਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਕੀਤੀ। 9 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਂ। 9 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, श्रीनगर ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈੱਡ, ਮੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਵਕਾਲਤ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੰਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੰਕਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ BP ਹੋਣ,
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਬੀਪੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਨਾਰਮਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਪੜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੇਟ 4-5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਛਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੱਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਸਰਾਹਨਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰकर वगैरह ਦੀਆਂ ਉਹ भी उन्होंने DC साहब की ड्यूटी लगाई है कि बंकर वगैरह ਜਿਹੜੇ ਉਹ भी बनाए जाए। अजीत सिंह जी, हमने देखा कि LG प्रशासन, LG साहब पूरा अपना उनका जो अमला है वहाँ पहुँचा हुआ था। जी। मैंने आपका जिक्र किया है, आपको रिलेट किया है पुल के साथ, तो LG साहब इसी पुल पर क्रॉस करके गए हैं, अजीत सिंह के पुल को लेके गए हैं। आपने ये कोशिश की कि LG साहब आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, मेरे लोगों से मिलना चाहिए जाकर, ये पुल का काम किया आपने? देखो मैं अपनी कौम हालांकि ये विजिट नहीं होता, मैं कौम दी और समझ विजिट जरूर होंदा। मैं दे अपना एज ए चेयरमैन सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर, मैं अपना कौम दा अपनी समाज दे उन्हां लोगों दा दर्द लैके पहुंचिया। तो तुसी वेख्या होना कि जिस दिन LG साहब आए, घुमा दिया आपने। नहीं, मैंने कहा वो पुल आप थे, नहीं, इस पर LG साहब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं ही था नहीं बोलूँगा। हो सकता है बहुत सारी संस्थाएं हों, मैं क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगा। इसमें बहुत बड़ा योगदान LG साहब का है। हमने अपनी गुहार लगाई कि जनाब हमारे आदमियों को ये प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी किया जाए हमें, तो उन्होंने वो किया। इसमें मैं अकेला बोलूँ कि अजीत सिंह ही सब कुछ कर रहा है जाए, वो ऐसा नहीं है। बहुत विरोध सहना पड़ रहा है आपको, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, जब एक शख्स एक पुल का काम करता है पूरी कौम के लिए, पूरे समाज के लिए, तो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ऐसा रविंद्र भाई साहब, आपके यहाँ में आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने कौम के लिए, समाज के लिए कुछ किया, यहाँ होनी चाहिए ना। वो हमें है कि हम कर रहे हैं और भगवान की ऐसी कृपा है, श्री डेरा नगाली साहब की ऐसी कृपा है। मैं पहले ही बोलता हूँ कि हम डेरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ऐसी कृपा है कि यहाँ भी आप नीयत साफ करके जिस काम के लिए निकलेंगे ना तो वो काम होगा। आपने देखा होगा, आपके देखे थे, मैंने कुछ वीडियोस आपके देखे थे, जिक्र हुआ था पुंछ के गुरुद्वारा साहब का, लेकिन जो वीडियोस मैंने आपके देखे इंस्टा पे, कृष्णा घाटी में भी कोई गुरुद्वारा साहब है जिसको काफ़ी नुकसान हुआ है। जी, उस दिन आप वहाँ विजिट किया था? LG साहब के इस विजिट के बाद में पुंछ में सिर्फ और सिर्फ अमरजीत सिंह जी के घर गया, क्योंकि वहाँ शेल जो सीधा छत में गिरी हुई थी वो देखा। बाकी सारी डिजीज फैमिली जो हमें पुंछ नगाली साहब में मिल चुकी थी। फिर वहाँ मुझे नगाली साहब में मालूम पड़ा कि एक कृष्णा घाटी में गुरुद्वारा है, जिस गुरुद्वारे के फर्स्ट फ्लोर की छत के ऊपर आके बम गिरा हुआ है। अब मुझे दिखा सकते हो? हाँ, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपको। उसकी छत के ऊपर बम गिरा हुआ है। और रविंद्र भैया मैं आपको क्या बताऊँ, उसको हाईलाइट ही नहीं किया गया। क्यों हाईलाइट नहीं किया गया मुझे समझ नहीं आई। शायद वहाँ कोई पहुँचा नहीं। फर्स्ट फ्लोर उन्होंने मतलब ग्राउंड फ्लोर को उन्होंने लेंटर डाला हुआ है। वहाँ में टोटल 18 घर हैं सिखों के। वो 18 घरों ने मिलके अप्रोक्सीमेटली 60 बाई 60 का या 50 बाई 50 का एक हाल बनाया है। उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ कॉलम और बीम बनाए हुए हैं। अभी उन्होंने लेंटर डालना बाकी है। वहाँ में एक बॉम्ब आता है, एक शेल गिरती है और वो सीधा आके 2.5 फुट बाई 2.5 फुट का ये बीम है। यह बीम देखिए ये कैसे फटा हुआ है।
इस बीम के ऊपर लग के तो वो नीचे जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की छत में आके लगता है। या पहले देखिए, ये छत उसकी फटती है। तो यहाँ कितने लोग शेल्टर लिए हुए थे? ये नीचे जो 50 बाई 50 का हाल है, इसमें 40 सिख बंदे बैठे हुए थे। 40 जो सेफ्टी के लिए यहाँ आके बैठे हुए, यहाँ लेंटर है। अगर वही देवे वो बम, पहले ये आप देखिए कि उसके शेल के टुकड़े देखिए, उसके आप शेल के टुकड़े देखिए, इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं उसके। अब ये शेल का टुकड़ा है, ये बम का टुकड़ा है। इसका देखिए नीचे कैसे थ्रेड लगी हुई है, इसके शेल के टुकड़े हैं। और ये देखिए, ये मैंने पूरा पुंछ स्टडी किया, पुंछ में कहीं इतने बड़े वो नहीं है जितने यहाँ में है। पाकिस्तान कहता है कि हमने रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट नहीं किया है। सर ऐसा है, मैं इसके लिए कुछ बोलूँगा, मैं 2 मिनट आपका टाइम लूँगा। ये तो आप जानते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। पहले बहुत सारी काराना हरकतें की, मगर पहलगाम में जो उन्होंने किया, निहत थे वो सैलानी जो जम्मू कश्मीर के इकनॉमी को बूस्ट करते हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई। उसका बदला सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। जब बदला लिया गया तो पाकिस्तान ने ये देखा कि भाई हमारी पेश तो चल नहीं रही इंडियन आर्मी के सामने, हमारी पेश चल नहीं रही एयरफोर्स के सामने, तो उन्होंने टारगेट किसको किया? रिहाइश इलाकों को। उसमें आप उड़ी ले लीजिए, बारामूला ले लीजिए, पुंछ ले लीजिए, रजौरी ले लीजिए, और विशेष तौर में बात बोलूँगा कि पंजाब को किस ढंग से टारगेट किया गया, क्यों टारगेट किया गया। उनकी इसमें एक बहुत गंदी मंशा और थी, ये आप देखिएगा, क्योंकि पंजाब में एक कूट प्रचार किया गया। उस कूट प्रचार का निचोड़ ये था कि कहीं ना कहीं ये चाहता था पाकिस्तान की विश्व में हिंदुस्तान की छवि ऐसी खराब हो कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मजहबी दंगे हों। ये आपने नोट किया होगा कि उन्होंने मजहबी दंगे कराने के लिए जो टारगेट किलिंग की गई धर्म पूछ के, और बाद में उन्होंने ये रिहायशी इलाकों में किया, और उन्होंने मजहबी दंगे करवाने के लिए ये चीज़ की। मगर मैं अप्रिशिएट करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन को, जिन्होंने कि वक्त रहते हुए मजहबी दंगे जो थे, जो आपस में भाईचारा था, उसमें बहुत बड़ा रोल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, जिन्होंने आपसी भाईचारा खराब होने नहीं दिया, आपसी भाईचारा बना रहा। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं, पुंछ में मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ सिख और हिंदू का हुआ है। मैं क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के बुद्धिजीवियों को मिला, बहुत सारे वहाँ पब्लिक को मिला, मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा। इसमें हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। नहीं है। अजय जी, हाँ जी, सवाल है कुछ, अभी हमारे पास वक्त लिमिटेड है जी। आपने कहा कि 22 अप्रैल को जो उन्होंने किया धर्म पूछकर, उसका बदला लिया भारत सरकार ने, और कठोर बदला लिया। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता अजय सिंह जी, जब ये रिटेलिएशन था, उनको मारा गया, पाकिस्तान को टारगेट किया गया, आपको नहीं लगता था कि भारत को लगता था कि वो भी पलटवार करेगा? इन्होंने जो पुंछ में हुआ नुकसान हुआ, इसको बचाया जा सकता था। वहाँ कुछ केयरलेसनेस हुई है। इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए, भारत ने कहीं भी पाकिस्तान में रिहायशी इलाके में कहीं कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या उड़ाया? उन्हें मिलिटेंटों के अड्डों को टारगेट किया। ये तो आप मानते हैं, आपने खुद वीडियो में देखा होगा कि जो मिलिटेंट मरे हैं वहाँ पाकिस्तान की फौज आ रही है, उनको आके पैसे दे रही है, उनके घर वालों को, ये आपने देखा होगा। और जो पुंछ की है, पुंछ रिहाइश इलाका था। अगर भारतीय फौज वहाँ एक्टिव नहीं होती, जिस ढंग से उन्होंने शेलिंग की हुई है, ये जो उनकी शेलिंग थी ये ऊपर ही फोड़ दी गई। अगर वो बॉम्ब आके नीचे गिरते तो मैं लिख के देता हूँ, जो मैं देख के हूँ ना, हजारों के हिसाब से तबाही होती। ये जो बॉम्ब थे ये ऊपर ही हमारे वालों ने ऊपर ही फोड़ दिए हुए थे, वो उनके टुकड़े, उनके अंश गिरे। अगर डायरेक्ट बम गिरता तो हजारों के हिसाब से पाकिस्तान पुंछ में नुकसान कर जाता। वीर जी के घर भी गए थे? हाँ बिल्कुल गया था। थोड़ा उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए, उनका क्या, किस तरह के हालात है वहाँ के? किया हूँ। आप किसकी बात बोल रहे हैं? आप सुरनकोट में शायद कुछ? नहीं, मैं मनकोट सबसे जो हमारी बहन थी बलविंदर कौर, उनके हस्बैंड है काला सिंह जी, वो एक दिहाड़ीदार हैं। अपने घर में उनका टीना है ऊपर, उनके 2-3 घर छोड़ के उनकी वाइफ के मामा जी का घर है। तो वो सेफ्टी के लिए मामा जी के घर में गए कि उनका लेंटर वाला घर है, पक्का घर है, हम वहाँ जाते हैं। उनके अनुसार 1:10 में रात को वो उनके घर गए, और 1:30 बजे 15 या 20 मिनट के बीच में ही उस लेडीज़ को, पूरा परिवार बैठा हुआ था, कहीं से एक शेल आती है और उस लेडी को आके लगती है, और वो लेडी ऑन द स्पॉट पूरी हो जाती है। उसकी एक 13 साल की बेटी है, वो स्पेशल चाइल्ड है, एक 7 साल की बेटी है, और अभी बेटा 1 साल का है।
जब उन बच्चों को मिलाना में, जो 1 साल का बच्चा है उसको तो बेचारी को पता ही कुछ नहीं है ना, वो तो 1 साल का है कि माँ मेरी कहाँ गई। 13 साल की बच्ची जो है स्पेशल चाइल्ड है, मतलब उस घर की ऐसी हालत है ना। मैं अप्रिशिएट करूंगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, धामी साहब को, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, जिन्होंने कि सिखों का मनोबल बढ़ाया, जो उनकी सुध लेने के लिए वहाँ पहुँचे और 5-5 लाख रुपया उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फंड से उस हर घर में जहाँ भी मौत हुई थी उनके हर एक के घर में 5-5 लाख रुपए दिया। मतलब ये बात पैसे की नहीं है, जो उनको लग रहा है कि हमारे पीछे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खड़ी है, सरकार खड़ी है। पैसे की बात नहीं है साहब, लेकिन बात पैसे की भी है। जिस तरह से आप बलविंदर कौर के बता रहे हैं, छोटे बच्चे रह गए, उनको पैसे की जरूरत है, उनको समाज को फेस करना है तो पैसे चाहिए। मगर वहां जाके एक शांति मिली उनके पति को देख के कि जो एलजी प्रशासन और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया कि उनके घर के किसी एक मेंबर को सरकारी नौकरी मिलेगी, उस घर में जाके मैंने अप्रिशिएट किया कि वाकई इनको सरकारी नौकरी की जरूरत है। अजीत सिंह जी, बहुत काबिले तारीफ काम आपने किया है, क्योंकि हमें आपसे सरदार अजीत सिंह से लोगों को उम्मीदें हैं। जब आप पुंछ में उन दिनों में नहीं पहुंचे तो लोग आपको देखना चाहते थे वहां, इसलिए पहला सवाल, वो कड़वा सवाल मैंने पूछा। रविंद्र भैया, वो मैं काम कर रहा था, मैंने पहले बोल दिया मैं काम एक्सपेक्ट करते हो, उसी से शिकायत होती है, क्योंकि उस वक्त मैं काम कर रहा था। उसका रिजल्ट आपने जो परसों देखा, बुधवार को देखा, वो काम था जिसका ये रिजल्ट था। ऐसे ही होते हैं, आपको बुरा लगा? नहीं, आपने बिल्कुल, मुझे अच्छा लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, ये आपका फर्ज है पूछना। अजीत सिंह जी, एक आखिरी सवाल, वक्त हो चुका है, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो 7 और 8 की रात को हुआ, 8 और 9 की रात को हुआ, वो दोबारा होगा, बिल्कुल ये कंफर्म है, वो दोबारा होगा। उसके लिए क्या? क्योंकि अब जो बात आपने की, बंकर नहीं है वहाँ पर, बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस नहीं है, या और चीज़ें हैं, उसके लिए क्या अब? या फिर हम वेट कर रहे हैं जब हालात आएंगे तो फिर ऐसे ही? मैं आपको बता दूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा उसमें डीसी पुंछ को भी, एलजी प्रशासन को तो कर ही रहा हूं। उन्होंने इंस्टेंट एक्शन लिया है। बहुत सारी जगह बड़े युद्ध स्तर के ऊपर बंकरों का काम चल रहा है, ये मैं खुद देख के आया हूं। एक तो मैंने आपको फोटो भी दिखाई, युद्ध स्तर के ऊपर बंकरों का काम चल रहा है। और एलजी साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेडिकल फैसिलिटी को अच्छा किया जाए। और मेरे हिसाब से पहले से 4 गुना ज़्यादा फौज और लगी हुई है अभी की बमबारी को देखते हुए, क्योंकि पहले ऐसी कहीं मुझे लग नहीं रहा कि कमी पेशी थी। अगर कमी पेशी होती तो पुंछ में बहुत ज़्यादा नुकसान होता। मगर इस बार की बमबारी को देखते हुए, और जो अच्छे से उन्होंने, जहाँ तक मेरी बातचीत हुई एलजी साहब से भी और प्रशासन से भी, आज मेरी आने से पहले भी उस दिन डीसी साहब से द्वारा बात हुई थी, उन्होंने युद्ध स्तर में काम शुरू किया हुआ है। मुझे आपसे एक शिकायत है। जी बताएं। आप पुंछ गए थे, मुझे चलना चाहिए था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देखा। मुझे बड़ा अफसोस है। मुझे जब रास्ते में था ना, तो मुझे लगा कि यहाँ रविंद्र भैया होने चाहिए थे। जब मैंने वहाँ के हालात देखे ना, यहाँ से आवाज़ निकली ना, तो तब मुझे फील हुआ कि नहीं, रविंद्र भैया यहाँ होने चाहिए। रविंद्र भैया, आप प्रोग्राम बनाइए, मैं आपको लाइव बोलता हूँ कि मैं आपके साथ चलूँगा। एक विजिट और वहाँ करके आते हैं, एक विजिट आप 2 दिन में, 4 दिन में, जब भी आप बोलेंगे एक विजिट करके आएंगे। वो हालात आंखों से देखना और पिक्स में देखना और वो फील करना, वो मतलब बहुत बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया था एक बार के लिए। वहां देखने से ऐसा लगता है, क्योंकि जब वो शेलिंग देखते हैं ना, और 13 मौतें देखते हैं, हम 13 देखते हैं बहुत है मतलब टोटल मिला के, मगर जब वो शेलिंग देखते हैं ना, तो वहां लगता है कि यहाँ 13 नहीं, हजारों के हिसाब से मरे परिवार गया। हाँ, वो एलजी प्रशासन को अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब कैजुअलिटी बहुत कम, उस ढंग से कुछ नहीं है, मतलब हमारा नुकसान उस ढंग से कुछ नहीं हुआ। शुक्रिया अजीत सिंह जी हमसे बात करने के लिए। हालांकि स्टेट सेंटिनल ने जिस दिन ये शेलिंग हो रही थी, मीन टाइम में रिपोर्टिंग नहीं की, क्योंकि हम दुश्मन की मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद लगातार हमने पुंछ के लोगों की बात की है, जो लोगों ने शहादत दी है उसकी बात की है। कैप्शन को याद रखना, एक ऐसा आदमी चाहिए हमें घर बैठकर जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है। हमारा एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो सरकार तक आवाज़ पहुंचा सके, जो हमारी बाजू बनकर सरकार का हाथ पकड़कर उसको हमारे लोगों को तक ला सके खींचकर। इस बात को याद रखना। विरोध करना आसान है, हम भी विरोध करेंगे अजीत सिंह का जब हमें लगेगा कि अजीत सिंह ने काम नहीं किया यहां पे। लेकिन यहां पे मुझे आज भी याद है, उस सरदार ड्राइवर को बुरी तरह से मारा हुआ था, मैं भूलता नहीं हूं कुछ भी। अजीत सिंह था वहां पर, कौम के साथ खड़ा होता है अजीत सिंह। पुंछ में ये नहीं मानेंगे, एलजी प्रशासन का हाथ थामकर पुल बनकर अपनी छाती से लेकर गए हैं वहां तक, पुंछ तक उन लोगों को।
ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो विरोध करते हैं करते रहें, लेकिन वो वक्त भी आएगा जब हमें अजीत सिंह का कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, हम खुलकर विरोध करेंगे उस बात का भी। लेकिन यहाँ पे आपने काम किया है, यहाँ आपने समाज और कौम का साथ दिया है, तो अप्रिशिएट करना बनता है। हमारा जर्नलिज्म कभी भी बाइस नहीं होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।